Hello everyone, welcome to the class and today we'll be learning about some of the basic fundamentals and theories regarding economics. So before we start the class, I would want you to be ready with whatever supplies you want, your pencil, your pen, your notebook, whatever. Take it honestly, you would not need a lot of things, just a material to write and note down your stuff. So, we'll learn today why is it important to know about economy, not just our economy but the world economy as well. What is the work of economists? What do they do? And what is the necessity of learning about economy? If we do not know about it, what is the problem? If we know about it, what are the benefits, right? So, this chapter is very new for you. The entire subject is very new for you. You might have never heard about it, might have heard about it, but you have certainly not read about economics so far in any of the classes. So, before starting, let me tell you that there are two branches of economics, which is microeconomics and macroeconomics. We'll continue the class. Wait, just me plug in the mic first. Okay, so it's done. And let's continue with the class. Okay, let me select the color for the pen. Should be this one. Fine. Now, there are two different branches of economy, micro and macro. In your syllabus, now you have microeconomics, which you will be studying in class 11. Okay? When you go further to class 12, you'll be studying about macroeconomics. Okay? In today's class, we'll also be learning a few fundamental difference between micro and macroeconomics. What are those and what is important if you want to know or further pursue your career as an economist. Now, take it. So before starting the class, it's important to know what an economy is. By definition, what it is. So by definition, economy is the interrelation between production, consumption, exchange of goods and distribution along with trade and services. ठीक है, जो भी चीज कंज्यूम होता है, प्रोड्यूस होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, नॉट जस्ट इन अ वेरी लार्ज और ग्रैंड स्केल, बट अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ किसी तरह का एक्सचेंज लेन देन कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. Now, there are also a lot of economic agents involved. ठीक है? Now, a few economic agents that you need to know are individual, business organizations, and government. ठीक है? Give the topic economic agents. And the first one would be individuals. If an individual is concerned, that will be considered as an individual economic agent. Next would be businessmen who take the job to a little larger scale and do it. Did I read the spelling correct? Yeah, ठीक. And next is government, who is also involved when it comes to import and export of business or any product or refined goods. What businessmen do is within a land, within a particular space, they do the same thing, exchange of goods, taking money in return, and this is also where all of the demand and supply chain will come into existence. Now, demand and supply will learn, but before that, let's see what is the necessity to study economics. Take it. You might have heard about inflation, that some countries are going through inflation, महंगाई काफी ज़्यादा बढ़ गया है, and they have no idea कि कैसे करना है, or even if they have an idea, they are not able to clear all of the inflation or get rid of that. एंड डेट काफी ज्यादा हो गया, एक्सटर्नल डेट दूसरे कंट्रीज से जो उधार लिया हुआ है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है. So this inflation comes into existence when the demand and supply do not meet each other. Demand is the what is demand? It is very obvious with the name. Demand किसी भी चीज की डिमांड को कहते हैं, ठीक है. आई डोंट थिंक वी नीड टू एक्सप्लेन इट. सप्लाई मतलब अगर आपका जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए उतना प्रोडक्ट है भी कि नहीं, ठीक है. लेट्स से कि मेरे पास 20 स्टूडेंट्स आते हैं एंड मेरे पास बैठने के लिए इतनी ही जगह है कि वहां हार्डली 15 ही बच्चे बैठ पाए. तो डिमांड तो ज्यादा की बट सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो कंजेशन तो होगा ना अगर उतने सारे बच्चे क्लास में एंटर कर जाएं. तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई.
लेट्स से कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं एंड पेपर का जो कंजम्पशन है, जो यूसेज है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, एंड उसके लिए we need to have a lot of notebooks and all of that, जिससे बुक्स प्रिंट हो सके, जिसमें बच्चे अपनी नोट्स बना सकें एंड whatever. लेट्स से कि कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इशूज अ कंप्लीट बैन ऑन द डिफॉरेस्टेशन या फिर कटिंग ऑफ ट्री, तो उसकी वजह से या तो विल हैव टू गो टू एन ऑल्टरनेट प्रोसेस या फिर ऑल्टरनेट मेथड ऑफ डिजिटल नोट्स और whatever, या फिर जो सप्लाई है पेपर्स का, नोटबुक का, दैट विल डिक्रीज एंड डिमांड यहाँ पर हाई चला जाएगा, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। इसी डिमांड और सप्लाई में जब एक गड़बड़ पैदा होता है, कोई रेशियो प्रॉपर बैलेंस नहीं होता, वी आर एबल टू सी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, एंड ये इन्फ्लेशन 0%, सॉरी नॉट 0%, कम से लेकर के ज्यादा भी हो सकता है। नाउ वी कैन ऑल्सो सी कि ये जो इन्फ्लेशन है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू भी मेजर किया जाता है कि एक कंट्री का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है या फिर पॉजिटिव है। जिस कंट्री का जीडीपी जितना ज्यादा लो, उसका उतना ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, एंड जिस कंट्री का जीडीपी जितना ज्यादा हाई रहेगा, उसका ही उतना ही ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा होगा। नाउ अ फ्यू कंट्रीज दैट हैव पॉजिटिव ग्रोथ या फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होल्ड करती हैं, दे आर यूएसए, चाइना एंड जापान, ठीक है, these are the top 3 economies in the world, USA, China and Japan, ठीक है, these have the highest GDPs or have the strongest economies of the world. Now I also want you to note down a few definitions of which have been given by a few famous economists. Even in your book you'll be able to see a lot of definitions by a lot of economists, बट सब याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी है वो याद कर लेना, अल्फ्रेड मार्शल का भी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी है, दैट आल्सो यू नीड टू लर्न, एंड नीड टू लर्न मतलब ऐसा भी नहीं कि एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी व्हिच हैज बीन गिवन बाय एडम स्मिथ और बाय अल्फ्रेड मार्शल, नो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी वाज गिवन बाय होम, ठीक है, 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स मैक्स टू मैक्स इतना ही आएगा। नाउ अब जहां पर हम लोग ये डिमांड और सप्लाई का बात कर रहे हैं, वहीं पर एक और चीज आ जाता है कंसिडर चैप्टर के अंदर, जिसको भी हम लोगों को जानना जरूरी है, रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेज एंड वांट्स आल्सो कम इनटू द पिक्चर। नाउ रिसोर्सेज ये है कि हम लोगों के पास कितनी सहूलियत, सलाहियत अवेलेबल है, कितनी चीजें हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एंड वांट्स मतलब कितनी हम लोगों को इच्छाएं हैं। अब ये तो कहा भी गया कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, वो कभी खत्म नहीं होगा, एक सीढ़ी पे पहुंचेंगे दूसरा फिर और दिखाई देने लगेगा, है ना। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू सक्सेस, अगर एक पार्ट पे आप पहुंच गए हो, वहां से आपको एक बड़ी वाइड दुनिया और नजर आने लगेगी, आपको मन करेगा नहीं इससे ज्यादा ऊंचाई पर जाना है, ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, बट रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड है ना, तो उसी लिमिटेड रिसोर्स में विल हैव टू मेक करना होगा अपने वांट्स को, सप्रेस करना होगा, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, विल हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दैट थिंग। नाउ लेट्स से कि आप किसी अपने रिलेटिव के घर गए हो और उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए हैं, लेट्स से 500 रुपीज दिए हैं, ठीक है, अब आपका मन चाह रहा है कि यार मेरे को तो एक ड्रेस भी लेना था, मेरे को एक अच्छा सा वाटर कलर का पैलेट भी लेना था, और भी कुछ चीजें लेनी थी, मेरा शूज भी खराब हो रहा है, पुराना हो रहा है, वो भी लेना था। तो आपके पास 3 चीजें तो मैंने ऐसे गिनवा दी है ना, तीन वांट्स आपके, बट आपके पास जो रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है, तो आपको इसमें चुनना पड़ेगा कि आपका सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी तरफ है ना, वही लोग है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आपको आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो, मे बी आपका जो ज्यादा प्रेफरेंस है वो वाटर कलर पैलेट की तरफ है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दिस इज व्हाट डिमांड है, सॉरी रिसोर्सेज एंड वांट्स आर। एंड नेक्स्ट कम्स इनटू पिक्चर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई फाइंड इट टू बी रियली इंटरेस्टिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपके कंडीशन पे आपको कुछ ना ऑप्शन दिए जाएंगे, या कुछ आपको व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ठीक है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। नाउ वेरी फेमस एग्जांपल दैट इवन माय टीचर्स यूज वाज
कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने जो भी आपके हाईएस्ट डिग्री अचीव करने का जो आपको इच्छा था, इरादा था, वो आपने अचीव कर लिया है एंड आपको किसी 3 बड़ी कंपनी से प्लेसमेंट का ऑफर आता है। लेट्स कॉल हिम ए, बी एंड सी, ठीक है। 3 बड़ी कंपनी से प्लेसमेंट का ऑफर आता है एंड कंपनी नंबर ए आपको ऑफर करती है 20,000, कंपनी नंबर बी आपको सीधा डबल ऑफर कर रही है 40,000 एंड कंपनी नंबर सी जो है वो आपको उससे भी डबल ऑफर कर रही है 80,000 ऑफर कर रही है, ठीक है। तो आप क्या चूज करोगे? ऑप्शन तो आपको काफी सीधा दिख रहा है कि इसमें तो चूज करने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा है 80,000 उसको ही चूज करेंगे ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपने सेकंड बेस्ट कौन सी अपॉर्चुनिटी को लूज किया है ना। इस कंडीशन में आप अगर 80,000 वाली नौकरी किसी भी तरह से अगर नहीं ले पाते तो आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या होता? 40,000 होता। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा इस कंडीशन में। जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर रहे हैं उसको लेने के लिए सेकंड बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप स्किप कर रहे हो, ठीक है, वो हो जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके लिए काफी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं वो आप कमेंट करके बताना। वी एट अ पॉइंट मेरे पास अभी तो एनी एग्जाम्पल कुछ सिमिलर ऐसे ही हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक कोई टीचर है, उसको किसी स्कूल पे ऑफर मिला है पढ़ाने का एंड शी चूजेस नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो जो बेस्ट वाला चाहिए, जो बेस्ट ऑफर देगा उसी के पास जाना है। तो जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो वो रिजेक्ट करके जा रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी। नाउ वी आल्सो नीड टू नो अबाउट टू थिंग्स मोर, पर उससे पहले उन दो चीजों को तक जाने से पहले we'll be learning about scarcity. SCARCITY, स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग है किसी चीज की कमी होना, ठीक है। किसी चीज की कमी, रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है, बताते हैं। स्कार्सिटी का मतलब किसी चीज की कमी होना। एंड ये एक कमेंट पास किया गया है कि स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी होती ही है। नॉट जस्ट इन योर हाउस बट इन योर सिटी, बट इन योर टाउन, इन योर कंट्री, इन द एंटायर वर्ल्ड। हर जगह आपके पास कुछ चीजें हैं जो अवेलेबल हैं रेडीली और कुछ है जो नहीं है। तो हर कंट्री के पास, हर इंसान की लाइफ में भी, अगर इंडिविजुअल लाइफ में भी हम लोग फोकस करें या थोड़ा अटेंशन डालें तो एवरीबडी हैज सम नीड ऑफ सम काइंड ऑफ स्कार्सिटी, या किसी न किसी चीज की कमी है उनके पास। नाउ कमिंग टू स्कार्सिटी वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इन सच अ वे कि कुछ कंट्रीज के पास मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं, कुछ के पास और काफी ज्यादा क्वालिटीज हैं, कुछ में वर्क पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो ईच कंट्री डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड कि हम लोग क्यों एक दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कुछ इम्पोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज सम कंट्रीज have an abundance of a particular thing that the other country lacks entirely. For example, we can consider Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम का एंड ऑयल का काफी ज्यादा अबेंडेंस है, ठीक है, बट इन अदर कंट्रीज अ लॉट ऑफ कंट्रीज नहीं है वहां पे। एंड वी कैन ऑल्सो से कि सऊदी अरेबिया में जो वाटर है ना, वो ड्रिंकेबल वाटर वो काफी कम है। सो एवरी कंट्री हैज सम काइंड ऑफ स्कार्सिटी एंड द कमेंट इज स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। अगर कभी आंसर में स्कार्सिटी इंक्लूड करना हुआ तो विद इन डबल कोट्स इसको भी इंक्लूड करना, स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। Now we coming back, or we are getting down to our last topic, which is positive and normative. अच्छा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे तो डिस्कस करना था, we'll do that as well. Positive and normative economy. Now positive economy is talking about the present, कि आपके पास आज में क्या है, वो आपके रियलिटी को, ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है या दर्शाता है, ठीक है। लेट्स से कि अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। बट अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास हर सब्जेक्ट के लिए और अलग अलग नोटबुक होना चाहिए था, मेरे पास 5 नोटबुक्स होना चाहिए था, तो अगर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा नॉर्मेटिव, या उस चीज के बारे जो होना चाहिए, विच शुड बी अवेलेबल बट है नहीं, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी जो है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में या सम कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है, राइट। वी कैन नॉट से कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव ग्रोथ या फिर बिल्कुल ही खराब है, बट वी आर जस्ट मैनेजिंग आवरसेल्फ। तो अगर ये कह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी लेट्स से 19.8 है, तो वो एक पॉजिटिव इकोनॉमी है,
ठीक है, बट अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी 30% या 50% ऐसा होना चाहिए, देन दैट विल बी नॉर्मेटिव। जो है वो पॉजिटिव है, एंड जिसकी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल। ठीक है, नाउ वी आर on to our last topic, which is the definition of micro and macroeconomic. Now, micro and macro नाम से ही पता चलता है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अब माइक्रो इकोनॉमिक है, मतलब इकोनॉमी को हम लोग एक छोटे स्केल पे स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमी जब आएगा तो एक वाइड स्केल पे, बड़े स्केल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाएगा। Now, microeconomics, the definition, let's see. Microeconomics is the study of economic actions of individuals and small group of individuals. ठीक है, काफी understandable सा definition है. I don't think I'll have to explain, but still let's say कि एक individual life को जब study करते हैं, उसमें economic action से उस पे क्या असर पड़ता है, उसके actions पे economy पे क्या असर पड़ता है, we can call that microeconomics. You'll be studying all about microeconomics in detail in your class 11 and in the further classes. Now, macroeconomics is when the entire economy of a country is studied, ठीक है, as a whole and not as a single unit but as a combination of all. ये नहीं करेंगे कि एक पर्टिकुलर इदारों का या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, नो, ऑल टुगेदर एक कंबाइंड स्टडी होगा ऑल ऑफ द organizations and the combined economy will be calculated, or the GDP or whatever will be calculated. Now, microeconomics concerns with particular households, firms and industries. ठीक है, very typical setup, काफी small scale में it can be understood. And ऐसे भी कह सकते हैं कि microeconomics जो है उसका जो head होगा या जो main leader है, it would be one, या फिर अगर organization, firm या industry setting में है तो उनके जो board of directors होगा, entire country, entire world, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा microeconomics में कोई भी changes आने से। Macroeconomics is the national income, general price level, national output, unemployment, and poverty. These all come under macroeconomics. Next, we have the objective. On demand side is to maximize utility, whereas on supply side is to minimize profits at minimum cost. ठीक है, यहाँ पर है कि डिमांड साइज में यूटिलिटी को बढ़ाना है कि जितना ज्यादा उससे इस्तेमाल किया जा सकता है, जितना ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको बढ़ाना है, एंड प्रॉफिट्स को मिनिमम कॉस्ट में मिनिमाइज करना है। Now, macroeconomics concern है to give full employment, price stability, economic growth, favorable balance of payments. I think everything is understandable, but just this price stability मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जा रहा है तो वो स्टेबल रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा कम और ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, a few days back we saw fluctuation in the price of tomatoes, right? टमाटर का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, इवन रीच टू 200 to 250 in my area. So this is what we call by price, or this is what is understandable, or what they want you to understand by price stability. अगर किसी चीज का प्राइस सेट किया जा रहा है, it should be stable for a really long period. और अगर प्राइस इंक्रीज भी कर रहा है तो it should be very reasonable and marginal कि लोग इस्तेमाल कर पाए. Because and price stability is also concerned with just necessary goods. अगर कोई luxury product है, then वो luxury brand का अपना देखने का है, ठीक है, it is responsible for itself whether वो करेगा या नहीं करेगा, उसको अपना मर्जी, वो जितना भी अनरीजनेबल प्राइस सेट कर दे। बट अगर लग्जरी नेसेसरी प्रोडक्ट जो है जिसका इस्तेमाल डेली लाइफ में होता ही है, तो उनका प्राइस जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। Now, basis of microeconomic is price mechanism which operates with the help of demand and supply force, and macroeconomics is national income, output and employment which are determined by aggregate demand and aggregate supply. Now, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोटबुक में इस टेबल को बना लेना, एंड ये अगर आपके एग्जाम में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन तो आएगा, ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के लिए आए, ठीक है, मे बी फॉर 2 मार्क्स, मे बी फॉर 4 मार्क्स। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसमें से पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि इसमें टोटल 7 पॉइंट्स है ना, 1 2 3 नो 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, तो एटलीस्ट 4 और 5 पॉइंट्स को याद कर लेना, ठीक है। इट वुड बी बेटर कि कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू आंसर। एंड डेफिनेशन याद कर लेना, एडम स्मिथ का एंड अल्फ्रेड मार्शल का, ज्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं है एंड काफी सिंपल सा भी है। साइंस, एडम स्मिथ का डेफिनेशन है साइंस ऑफ वेल्थ,
एंड जिसमें वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक इकोनॉमी, एक कंट्री का इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है, एंड वेल्थ जो है उसको कैसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, ऑल ऑफ दैट. एंड अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन है in which he says that means to ends. He talks about means to ends. Now means to ends मतलब means यहाँ से रेफर कर जाएगा आपका goods and services से, जो प्रोडक्ट है. ठीक है. means and ends means आपका needs and requirements of people. needs and requirements. अच्छा, अब एंड का मतलब खत्म होना भी नहीं होता. इंग्लिश एक काफी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है. एक प्रोवर्ब भी है दैट आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक द एंड्स मीट. यहाँ पर जब एंड्स मीट बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि दोनों खत्म हिस्सों को या दोनों सिरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए स्ट्रगल कर रही है. बेसिक जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है. ठीक है, दिस इज इट. एडम स्मिथ का डेफिनेशन says साइंस ऑफ वेल्थ, एंड अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन says means to ends. This is all you need to understand for today's class. Micro and macroeconomics we have discussed. We have discussed the importance of economics. वो क्या करते हैं and उनका importance क्या है. Economists जो होते हैं, they study the wealth of the country or of the world and कहाँ उसको proper इस्तेमाल करके कैसे use करना है. They all discuss that. Now this is going to be it for today's class. See you in another class. Until then, goodbye.